Hare Krishna. So welcome to lesson 3 of course 1. This is going to be a very interesting lesson. In this lesson we are going to discuss case studies of various online educators around the world, because generally devotees or people in general have misconception that only entertaining contents trend, and there is demand for only entertaining content, and there is no demand for educational contents, and there are very few educators, so there are many misconceptions like that. So this whole course 1, whatever lessons we are discussing, whatever concepts we are discussing, you will see that these concepts basically addresses either some misconception or some mental blockages generally preachers have or educators have when they start to preach. So from course 2 we will be doing more practical stuffs, like research, creating contents, etc. But in course 1 we wanted to address first of all these mental blockages or misconceptions, so that when once you start executing, or when you start to create contents, then you do not get any doubt, misconception, and the path should be very smooth, and we can move at very high pace. So therefore in course 1 we are trying to address these misconceptions, variety of misconceptions, clear doubts regarding online preaching or in about preaching in general, so that educators will have a proper mindset. And with that mindset, when we start to create something, then it will produce a result also. And we will also be able to do things for longer duration. So it's not that just we create one content and we vanish. So therefore we are discussing these theoretical concepts in course 1. So before moving further and starting lesson 3, let us recap what we have discussed in previous lesson. In lesson 1 we discussed visionary approach, how to have visionary approach towards missionary activities and not just touch and go approach. Second, we discussed how to have maximum possible impact by uh, as educator coming together on a common platform and creating variety of contents and sticking ourselves to uh, what we are good at, so we talked about unity in that and systematic preaching in that. Then third, we discussed visualizing the goal. So we discussed in this that how we want to create a platform. It is online platform, either it be website or app, where we have lot of contents, presentation of spirituality for new people, new audience, from different perspective, and there will be so many educators. We will have articles, podcast, and online courses. So like that, this was the goal. Then in lesson 2, which was educators, education, and revolutions, we discussed how education and educator is in the root of or you can say are the foundation of any society or any type of activity in general. So it all started with destruction of educators and knowledge. So you can see we discuss in that how many types of invaders came in India, and they started to destroy. The very first thing which they destroyed, they attacked, was educators, which are brahmanas and education. So therefore it must be built from there. Second, we discussed education and revolution. In this we discussed that how case studies of various reforms, few of things we discussed including ISKCON also, case study of reforms around the world founded and fueled by education and educators. So just to give you an idea that what is the power of education and what education can do. So therefore we discuss this topic. Then we discuss very interesting concept, the bottleneck of preaching. So has preaching can be done to various type of audience, and there are variety of topics which you can preach about. But we discuss in this that how SEC is focused upon a narrow band of topics. Those topics are, we discussed that how those topics are bottleneck of preaching, and which clogs someone's path towards spirituality, you know. and and until that clogging is not cleared,
those topics or questions regarding those topics are not cleared very systematically and logically, it becomes very difficult for a person to advance in his spirituality. And even if he's jumping, if suppose he's skipping these topics and he's trying to do practices, etc., later on he will get these doubts. So therefore there is no choice, there is no shortcut. We, every person has to go through this, these type of doubts which we call bottleneck. And therefore as a preacher, as an educator, we must understand कि we must have proper strategy, education, educators and education contents to address these doubts from different perspectives and through different types of contents in logical and systematic manner. Now today we are going to discuss lesson 3, which is case study of cause based educators around the world. So why first I will discuss why this topic. So generally when you see around the world what is trending, जब भी हम यूट्यूब पे जाते हैं या ट्विटर पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, तो एजुकेटर्स जो हैं या जो प्रीचिंग करना चाहते हैं, जब भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कहीं पे भी, हर जगह वो देखते हैं कि ओनली एंटरटेनिंग कंटेंट्स आर ट्रेंडिंग एवरीवेयर. यू सी व्हाट इज ट्रेंडिंग, इट्स आइदर एंटरटेनमेंट और सम रीसेंट न्यूज. और रीसेंट न्यूज का मतलब है कि उसका इट डजंट हैव वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन. One day, 2 day, it will be headline and then it will go away. So either it is some recent news, कुछ अलग हुआ, कुछ different हुआ, या फिर something is very entertaining, है ना. तो devotees when they see that online platform पे only entertaining contents are trending, या तो उनको they get a misconception कि either we, if we want to spread Krishna consciousness, or if we want to spread preaching online, then there is no other option than creating entertaining contents, you know. Purely entertainment, of course later on I will discuss in this topic how entertainment is not bad actually. We can use that entertainment to promote education also. But I am just talking about something which is of pure entertainment, although this is also a misnomer, I will discuss later. Nothing is pure entertainment. Even materialistic entertainment videos also, if you see, it is actually preaching materialistic ideology. It is not pure entertainment also. We will discuss this in detail in this session. But point is that in general you will see that entertaining contents are trending. So when preachers see this, wherever they put their eyes, they see that entertainment is there. So then they get some doubt, है ना. They get a doubt that कि यार मुझे लगता है कि preaching होगा ही नहीं, या लोग कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है एजुकेशनल कंटेंट में. So this is actually a misconception which I wanted to address in this session. But first of all, let me show you what is trending around the world. So yesterday I created this PPT yesterday. So if you go to YouTube, I have just taken example of YouTube. And if you go to YouTube channel and you click on trending button, so this was trending yesterday on India. Point is that it is entertainment, entertaining content. You will never see an educator trending in any country. Don't think that it's only about India, or we are facing problem in preaching. No, this is problem of educators in general. You will never find videos of scientists trending on trending button. No, you will never find, not even in a single country. It's not only about India. Now then, in YouTube there is a facility कि आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि किस कंट्री में क्या ट्रेंड हो रहा है. तो मैंने लोकेशन चेंज कर करके जो है स्नैप्स लिए हैं उसके, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कंट्री में कल क्या ट्रेंड हो रहा था. और आप देखेंगे कि इट्स एंटरटेनमेंट ओनली. This was trending yesterday in USA, है ना. You can see it's entertainment, है ना. This was trending in United Kingdom yesterday, again entertainment. This was trending in Iceland. So in Iceland also entertainment is trending. In Iraq, this was trending in Iraq. So
I could not understand the language, but through thumbnail we can understand that it's entertainment. Entertainment means physical, stimulating physical or physic or emotions, है ना, physical senses or emotions. And education is more about instigating intellect and ego. Ego means identity. So I will discuss this later on. This was trending yesterday in Zimbabwe. So you can see again entertainments, and it's comedy, either sports, it's song, है ना, or movie like that. So when educators see that wherever we put our eyes, है ना, he sees that only entertaining contents are trending, so they get discouraged and they start to form some misconceptions. What are those misconceptions? कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, ये सब सुनने में, हमारा कोई सुनना नहीं चाहता। एक्चुअली प्रो जी बात ये है कि कलयुग बहुत बढ़ गया है और प्रीचिंग व्रीचिंग अब होगा नहीं इतना ज़्यादा। कुछ लोग जो पास कर्मा लेके आए हैं, पाइटी है जिनके पास, वही कर पाएंगे और वही सुनेंगे केवल, और बाकी लोगों के बस का नहीं रहा अब। आजकल सब लगे हुए हैं टिकटॉक पे और पबजी में, है ना, कौन सुनेगा ये सब, है ना, किसके पास टाइम है। एजुकेशन कोई लेना ही नहीं चाहता प्रभु जी, है ना, कोई सुधरना ही नहीं चाहता, है ना, घोर कलयुग है। अटेंशन स्पैन कम है, आयु कम है, बीमारी बढ़ रही है, जॉब नहीं है। तो इसलिए समटाइम्स एजुकेटर्स कंक्लूड, ये सब जब देखते हैं तो ये कंक्लूजन्स, मिसकंसेप्शंस फॉर्म करते हैं, और ये मिसकंसेप्शन अल्टीमेटली बहुत डिस्करेजिंग होता है, स्पेशली उन डिवोटीज के लिए, दोज हु हैव इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स प्रीचिंग and those who have inclination towards creating educational contents or like that. So therefore, and yes, one more thing is that we ourselves get carried away. हम लोगों को as a educator, we also do not know what type of contents we should consume. What are the platforms apart from entertainment platforms where we can go and consume educational contents. तो पॉइंट ये है कि if we are consuming junk items, then definitely we are going to it is going to create a mindset in us कि यही चल रहा है पूरे संसार में। आप समझ रहे हैं? आप जिन भी चीजों, आप अगर एक ही चीज, दो चीज ही बार बार देख रहे हैं एज ए एजुकेटर ऑल्सो, तो थोड़े दिन के बाद हमें लगता है कि यही चल रहा है संसार में, है ना। So therefore, in this session, I am going to tell you, inform you about many types of platforms apart from entertainment platforms where you can find variety of educational contents, and even what people think that YouTube, etc., as entertaining platforms. I will show you many examples, many channels on YouTube only. You will find that they are educators and they are getting very good number of viewers also. So as an educator also, it is our duty to not get carried away and change our taste of what content we consume. The moment we change our taste, you will start to find, you will start to get ideas, you will start to get hope, because you will see that so many people are watching these videos also. So you will start to get inspiration that okay, if I also make such type of video or write articles, such type of article, then people, ऐसा नहीं है कि कोई देखेगा ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना। So these are some of the misconceptions which we are going to address in this session. So basically we will discuss three things, three concepts in this session. This session is actually, we will discuss theory, very less theory, but it will more about, I wanted to show you case studies of online educators, online platforms, YouTube channels, websites, who are doing very good in educational field. You know, they may have different purposes, we have different purpose to solve, they have different purpose to solve, but nonetheless, just like we have a cause, they also have a cause, you know. So therefore they are educators, so we can take inspiration from them and we can consume their contents also to get ideas and to promote our cause. So I will focus more on that, but we will also discuss mindset and expectations as an educator. एक एजुकेटर को क्या माइंडसेट रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए अपने कंटेंट से, है ना, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज
I have seen that preachers getting frustrated. They start to see कि भाई लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पे बिल्कुल भी, 15 ही व्यूज हैं केवल, है ना, या 15 लोगों ने ही कमेंट किया है हमारे वीडियो पे, एंड दे स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे स्टार्ट टू गेट डिसअपॉइंटेड, है ना. सो देयरफॉर यू मस्ट नो कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, है ना. एंड नॉट ओनली फॉर अस. इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रीचिंग. कोई भी कंट्री उठा के आप देख लीजिए, किसी भी कंट्री के एजुकेटर को देख लीजिए, दे डू नॉट ट्रेंड ऑन आइदर यूट्यूब और ट्विटर, और अनलेस अंटिल कोई कंट्रोवर्सी हुआ हो उनके उनके लाइफ में, दे डू नॉट, दे नेवर ट्रेंड. इवन कभी आपने यूट्यूब के सीईओ का वीडियो भी ट्रेंडिंग होते नहीं देखा होगा यूट्यूब पे. सो देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एज एन एजुकेटर व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी शुड हैव, है ना. और एक्सपेक्टेशंस को अगर हम मैनेज करेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, रादर हम इंथुजियास्टिकली. मैं ये भी नहीं कह रहा कि एजुकेटर्स कैन नॉट गेट व्यूअर्स, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है. लेकिन व्यूअर्स लाने के लिए व्हाट वी हैव टू पुट इनसाइड, है ना, क्या एफर्ट लगाने का आवश्यकता है, दैट वी मस्ट नो. और एक्सपेक्टेशन की जहां तक बात है, तो जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही एक्सपेक्ट करें हम, है ना. बट इतना पता होना चाहिए हम सबको कि क्या एफर्ट लगाना है और किस चीज का नीड है ना, दैट वी मस्ट नो. देन सेकंड वी विल डिस्कस कि हम कौन है, हु आर वी एंटरटेनर्स और आर वी एजुकेटर्स. जब हम वर्ड यूज करते हैं एजुकेटर्स, तो मेनी पीपल हैव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दैट कि एजुकेटर्स कैनॉट एंटरटेन, है ना. दिस इज ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन. एक्चुअली एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन गो हैंड इन हैंड, and there is no other way to preach other than mixing these two things. Of course, as the audience becomes more mature, their definition of entertainment changes, quality of entertainment changes, but entertainment is required. So as an educator, we will discuss here how to use entertainment in our content, so that we can grow, our content can reach maximum people, and how to gradually give people taste of education, है ना, so that we can gradually change their, mold their taste also. And third, we are going to discuss case studies, different types of, I will show you different types of uh, websites, YouTube channels, different types of platforms where you will get various variety of ideas about various topics. And most importantly, apart from getting ideas, most important would be that you will get to know that there is another world. That world is dominated by educators, and they also have millions and millions of viewers and followers. So currently we are living in a box where जहाँ पे भी हम देखते हैं, हम entertaining contents देखते हैं सामने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसे भी channels exist करते हैं, ऐसे भी platforms exist करते हैं, किसी ने कभी बताया नहीं actually. तो इसलिए यहाँ पे आपको बताएंगे कि how there are so many channels, है ना, so many educators, जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनके कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं. तो उससे आपको एक होप मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ये भी एक संसार है. देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर इंटरेस्टेड इन सीरियस टॉपिक्स, और थोड़े मोड़े नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट. सो लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट टॉपिक, that is mindset and expectation as an educator. What mindset an educator should have, and what expectations he should keep with his content. Mindset का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, तो there is that work and there is a spirit behind that work, है ना. So that is called mindset. अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना, तो इससे पहले कि आप किताब उठाएं, कॉपी उठाएं और चेयर कुर्सी पे बैठें, वी नीड टू फर्स्ट सेट आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड सेटिंग माइंडसेट. आप देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसमें भी ये प्रिंसिपल यूज होता है. जैसे कि जब चैंटिंग करते हैं तो बोला जाता है चैंटिंग से पहले शिक्षाष्टकम प्रेयर्स पढ़े जाते हैं. और तो वो क्या है, तो चैंटिंग, इससे पहले कि आप माला पकड़ते हैं, इससे पहले कि आप चैंटिंग के पोस्चर में बैठते हैं, आपके माइंडसेट को, है ना, माइंडसेट, इट इज चेंजिंग द माइंडसेट.
तो शिक्षाष्टकम का मीनिंग पढ़ के एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टू चैंट इट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट. सो सिमिलरली माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए एज एन एजुकेटर व्हाट माइंडसेट वी शुड हैव एंड व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी शुड हैव. अगर आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा. इसलिए वी शुड एग्जैक्टली नो कि एज एन एजुकेटर व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी शुड कीप. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन लो रखना चाहिए. मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन हाई रखना चाहिए, किस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन लो रखना चाहिए. अब आपको ये देखना है कि आप वो कंडीशन कितना फुलफिल कर पा रहे हैं. उसके हिसाब से आप अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी सकते हैं और उसके हिसाब से हमें अपने एक्सपेक्टेशन को घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. मायूस नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेड नहीं फील करना चाहिए. रादर वी शुड वर्क ऑन enhancing our quality. So this is what we are going to discuss. So therefore we educators must first of all know that education is tough. So एक बार कोई मीटिंग हो रहा था तो उसमें I was discussing with Sundar Gopal Prabhu. तो Prabhu ji told one very important concept कि देखो हम जो वैदिक कल्चर प्रीच करना चाह रहे हैं, है ना, या नॉलेज वैदिक कल्चर या नॉलेज जो हम प्रीचिंग करना चाह रहे हैं या एजुकेट करना चाह रहे हैं लोगों को, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, उनको जिस तरीके से जितने सिस्टमैटिकली ब्रेक किया गया है ना, जितना यूनाइटेड एफर्ट लगा के ब्रेक किया गया है, और तीसरा चीज जितना टाइम लगा के ब्रेक किया गया है ना, तो हमें उसको ठीक करने में भी उतना ही टाइम लग सकता है. we as an educator cannot get impatient. मतलब I understood from that conversation कि we as an educator, तो एक डिवोटी थे उनको बता रहे थे एक्चुअली प्रभु जी, तो बता रहे थे कि आप एजुकेटर हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन, आप एक वीडियो दो वीडियो को के व्यूज को ध्यान में रख के काम मत कीजिए. यू विल हैव टू थिंक 2 years 4 years डाउन द लाइन, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो बनाया उस पर 150 व्यू आए फिर हम डिसअपॉइंटेड हो गए. आप समझे ना. सो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये टफ है, ये आसान नहीं है ना. दिस वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर इट विल बी लिटिल टफ टू गेट ऑडियंस. लॉट ऑफ मतलब मास, आई एम टॉकिंग अबाउट मास. ऑफ कोर्स यू कैन अट्रैक्ट क्वालिटी ऑडियंस इमीडिएटली ऑल्सो, बट वी विल ट्राई टू डू दैट. बट स्टिल वो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रेटेजी है हमारे पास. इन नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली, ब्लूप्रिंट, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी. तो उससे आप जाएंगे तो यू विल गेट मोर रिजल्ट ऑल्सो, बट स्टिल you will not get as much result as entertainers are getting. So this also we should know, because education is tough. What makes education tough? Because education provokes a person to change, while entertainment content doesn't provoke a person. Pure entertainment I am talking about, in general terms, it doesn't provoke you to change. So education provokes you to change your perspective. First of all, how you see things, है ना. What opinions you have about certain things, what opinions you have about certain events in life, what opinions you have about uh, certain events in going on in society, है ना, social issues and so many lot of things. So education provokes you to change that. And then second thing which education provokes to change is your identity, perspective and identity, who we are as a person. What is the meaning of who we are as a person? Who we are as a person means what things we value in our life. So whatever we value in our life, our action, our speech, our thought process, our dedication and our resources all go behind that. So therefore education is tough because it provokes you to change your perspective, it provokes you to change your identity as a person. It provokes you to change your values, what you value in your life. It provokes you to reconsider your priorities in your life. आपने किसी चीज को पहले नंबर पे रखा हुआ है, बट अब एजुकेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो बेकार की चीज है, इसको मुझे इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए, इसको नीचे खिसका देते हैं थोड़ा प्रायोरिटी में, थोड़ा ये वाला चीज ऊपर रख देते हैं प्रायोरिटी में, सर्विस को थोड़ा ऊपर रख देते हैं, है ना, डिवोशन को थोड़ा ऊपर रख देते हैं. तो ये क्या है,
it is provoking you to change, and change is always difficult. But entertaining content on the other hand, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है धक्का दे रहा है कि नहीं उसको क्लिफ से. एंटरटेनिंग कंटेंट क्या है? प्योर एंटरटेनमेंट. और हाँ, ये याद रखिएगा कि मैं ये मिसनोमर है, प्योर एंटरटेनमेंट जैसा कुछ होता नहीं है. बट पॉइंट ये है कि जिसको हम एंटरटेनिंग कंटेंट कहते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट एंटरटेनिंग कंटेंट, इट इज बेसिकली मटेरियलिस्टिक कंटेंट. So try to understand, there is not war between education and entertainment. Entertainment is important thing actually, and entertainment, when we mix entertainment and education, it becomes very powerful weapon of preaching. So let us not get a misconception that we are discussing entertainment versus education. No, it's always education. No entertaining content is purely entertainment. They are always trying to sell you something. Either they are selling you materialistic philosophy, or they are selling you philosophies like consumerism, or they are selling you an idea that physical pleasure, sensual pleasure is everything, or they are selling you some product. So this is education actually, by the way. They are trying to make you do something. They are trying to mold your thinking. They are trying to change your perspective. So don't think that it's education versus entertainment. No, it's always education only, but it's about right education and wrong education. Okay, so what is wrong education? So चेंज का मतलब ये है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, उसमें भी एजुकेशन चाहिए. आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया जा रहा है, आपके आइडेंटिटी को चेंज किया जा रहा है ना, व्हाट यू वैल्यू एज अ पर्सन. और दूसरा साइड ये है कि कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपको चेंज होने के लिए फोर्स नहीं करते या इंस्पायर नहीं करते. रादर आप अगर डाउन जा रहे हैं तो आपको और धक्का देंगे और फोर्स से आपको नीचे लेके जाएंगे. तो एजुकेशन वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट है. एजुकेशन वो भी है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो आपको आपके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली people who are not trained, they have tendency to just people have tendency to see porn. Okay, तो एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना. तो उसने ये नहीं सोचा कि ये इसके लिए सही है या गलत है. उसने क्या किया, उसने एक कंपनी बना दिया. उसने बोला कि ठीक है, तुमको ये करना है ना, तुम अच्छे से करो, मैं कंपनी बना देता हूँ इसके लिए, इसका एक फिलॉसफी भी बना देता हूँ, इसको लोग प्रमोट भी करेंगे, प्रोमोटर्स एजुकेटर्स भी होंगे उसके. आप समझे ना. और तो ये क्या है कि दे आर नॉट प्रोवोकिंग यू टू चेंज. रादर आप अगर गड्ढे में जा रहे हैं तो आपको और अच्छे से धक्का देंगे, जैसे फोटो में आप देख सकते हैं. तो कई इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कि आपको चेंज करने के लिए नहीं, आपके इंटरेस्ट को नजर में ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है. रादर इट इज जस्ट टेकिंग बेनिफिट कि आपके अंदर टेंडेंसी है अपने आप को हार्म करने का. ठीक है, लो सिगरेट पियो, ठीक है ना. और सिगरेट ऐसे ही नहीं पीता कोई, उसको भी एजुकेट किया जाता है सिगरेट पीने के लिए, उसका भी प्रोसेस है पूरा. ऐसे ही नहीं सिगरेट पीता है, उसका आइडियोलॉजी वो दिमाग में डाला जाता है. तो डोंट थिंक दैट इट इज नॉट एजुकेशन, इट इज एजुकेशन. बट this there is one type of education where we are trying to change a person's perspective. We are trying to redefine what a person values in his life, and hence we are trying to redefine his identity, his or her identity. There is another type of education which is not trying to change you, which doesn't consider whether something is good or bad, you are going in right direction, wrong direction. In whatever direction you are going, it will just help you. Not only help you, it will help you to move faster, है ना. So when we say education is tough, so you will I'm talking about that education which preachers are trying to give, devotees are trying to give to others. So we all should know that it is tough, because it is like swimming upstream. जैसे आप अगर नदी में कभी गए हैं तो नदी में आप देखेंगे कि बहाव के साथ बहना बहुत आसान होता है. लेकिन आप बहाव के उल्टी दिशा में
अप स्ट्रीम इफ यू वांट टू स्विम देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो देयरफॉर going upstream, going and changing the direction of our perspective, so that is difficult. तो हम भी एजुकेटर्स हैं, और मटेरियलिज्म जो फिलॉसफी है उसके अंदर भी एजुकेटर्स ही हैं जो कि रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को. डोंट थिंक दैट एंटरटेनर्स रूल. एंटरटेनर्स, देखो एंटरटेनर्स बिकते हैं मार्केट में, दे हैव अ प्राइस टैग. इफ यू हैव 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज, यू कैन परचेज आमिर खान टू से दैट, बोल दो कि चैंटिंग अच्छा है ना. आपको चैंटिंग के बारे में नहीं बोलेगा वो, बट आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसको प्रमोट करवा सकते हो, ठीक है ना. तो एंटरटेनर्स हैव अ प्राइस. आपके पास अगर प्रॉपर पैसा है, प्राइस है, तो आप बहुत फेमस एक्टर से ये भी बुलवा सकते हो कि ये पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए, पान मसाला खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है ना. और जो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग सब समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ. और पान मसाला खाइए, इसके अंदर केसर है, ठीक है ना. केसर को इतना ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ऐसा लगता है कि केवल केसर ही है उसके अंदर, पान मसाला है ही नहीं. तो एनीवे, पॉइंट ये है कि एंटरटेनर्स डू नॉट रूल द वर्ल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप, हो सकता है आप आसपास देखें कि एंटरटेनिंग कंटेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं, और एक्टर्स, एंटरटेनर्स, वो लोग फेमस हो रहे हैं, बट दे डू नॉट रूल द वर्ल्ड. दे आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ एजुकेटर्स. अब एजुकेटर्स दो तरीके के होते हैं. एजुकेटर्स हु आर ट्राइंग टू make people or world go in right direction, and there are educators who help people to go fast in wrong direction. That is materialism. So educators are running the show, they remain behind the curtain. You will never find them in front, or even materialistic educators also you will not find on trending button. So therefore we educators should not have any misconception about these things, कि why education videos do not trend, preaching videos do not trend. Or so it's not only about, it's not about preaching video. No educator trends on YouTube, try to understand, ever, in the history, unless until कि कोई केस हुआ हो उसके लाइफ में, कोई जो है कंट्रोवर्सी हुआ हो. So therefore the fight is not between educators and entertainers, try to, because entertainers are no one, they are puppets. उनको क्रिटिसाइज करने का भी ज्यादा फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. सो आप देखोगे, जैसे अभी रिसेंट केस हुआ था बॉलीवुड में और ये सब चीजों में, तो बहुत लोग उनके पीछे पड़ गए, है ना. बट उनके पीछे जो लोग हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि वो आराम से बैठे हुए हैं, है ना. और ये लोग तो क्या, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए में खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो. दे हैव अ प्राइस, यू कैन परचेज देम. इवन बिग बिग एक्टर्स, दे हैव अ प्राइस. आप उनको पैसा दो सफिशिएंट, वो किसी ब्रांड का प्रमोशन करने लग जाएंगे. आप देखो रिसेंट अभी जो है कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें जो शाहरुख खान की डॉटर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि आई एम ब्लैक, आई हैव सम ब्लैकिश कम्प्लेक्शन, डजंट मैटर, है ना. वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट हु वी आर एंड लाइक दैट. तो उसमें किसी ने कमेंट में लिखा कि आप अपने पिताजी को बोलो ये जाके, क्योंकि आपके पिताजी शाहरुख खान पहले बहुत फेयर एंड लवली का ऐड करते थे, कुछ फेयरनेस क्रीम का ऐड किया होगा कभी शाहरुख खान ने. तो पॉइंट ये है कि उनका कोई फिलॉसफी नहीं है ना. एंटरटेनर्स डू नॉट हैव देयर आइडेंटिटी, दे डू नॉट हैव एनी फिलॉसफी. They cannot have their identity because they are entertainers. They can be purchased. And who purchases them? Educators. So therefore, it's not education versus entertainment. Rather, it's right type of education versus wrong type of education. And both of them, both types of educators need entertainment as a tool to propagate their education. So what? So educators must know that we what education we are giving is provoking people to change from wrong direction to right direction. Therefore, it becomes little tough. And second is why education is tough. Such type of the right type of education is tough because it requires commitment. है ना? Wrong education doesn't require any type of commitment. It actually looks very simple. It looks very natural also. Therefore sometimes you will find many people saying कि भगवान ने अगर ये दिया है ना, अगर लस्सी डिजायर बना है तो दिक्कत क्या है इसमें, है कि नहीं, नेचुरल है बहुत हमारे लिए. भगवान ने जानवर बनाया तो मीट खाने में दिक्कत क्या है. तो दे सो
अगर कोई व्यक्ति आता है और वो वीडियो बनाता है कि मीट खाना चाहिए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो वीडियो ट्रेंड कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों के डायरेक्शन को चेंज करना चाहोगे, है ना, तो देन इट विल बिकम टफ बिकॉज इट रिक्वायर्स सम कमिटमेंट। सो देयरफॉर फर्स्ट थिंग इज it requires change, therefore it is tough. What we are trying to preach, it requires commitment, therefore it is tough. And third is that stimulation. So जो रॉन्ग एजुकेशन है, जो रॉन्ग एजुकेटर्स हैं, दे स्टिमुलेट इमोशंस एंड सेंसेस, जिसका ज्यादा दिन तक इफेक्ट नहीं रहता है। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, 2 मिनट 3 मिनट का प्लेजर होता है। या मूवी देखा आपने, मुझे याद है मैं जब शायद 10th में था, तो बोर्ड एग्जाम के बाद मूवी देखने के लिए गए थे। उस टाइम पे चक दे इंडिया लगी हुई थी सिनेमा हॉल में। तो चक दे इंडिया जब देखा तो बड़ा नेशनलिस्टिक विचार आया, है ना। लगा कि यार देश के लिए कुछ करना चाहिए जैसा इसने किया, है ना, पर ज्यादा दिन तक टिका नहीं। इसी तरीके से कई लोग बोलते हैं कि मूवीज अच्छे भी तो होते हैं, अच्छे होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो केवल माइंड के लेवल तक आपको इंस्टिगेट स्टिमुलेट करते हैं। और सेंसेस और माइंड ऐसी चीजें हैं कि ये बहुत फिकल होती है। अभी 2 दिन ये सोच रहा है, 3 दिन के बाद कुछ और सोचने लगेगा। लेकिन जो राइट टाइप ऑफ एजुकेशन है वो आपके माइंड और सेंसेस से ज्यादा फोकस करता है इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट करने में, और दूसरा ईगो को स्टिमुलेट करने में। ईगो का मतलब होता है आइडेंटिटी। ईगो मीन्स जिसको अहम कहते हैं, है ना, अहम। तो प्रभुपाद बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद, कई लोग समझते हैं ईगो कोई नेगेटिव वर्ड है, बट ईगो नेगेटिव वर्ड नहीं है, फॉल्स ईगो नेगेटिव वर्ड है। ईगो जो है वो सही वर्ड है। ईगो का मतलब होता है आइडेंटिटी, है ना, अहम जिसको बोलते हैं। तो अगर सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है ना, तो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब। तो देयरफॉर ईगो जरूरी है, बट दैट इज कॉल्ड रियल ईगो। प्रभुपाद उसको रियल ईगो बोलते हैं, रियल ईगो वर्सेस फॉल्स ईगो। सो ईगो इज नॉट बैड, बट पॉइंट इज दैट कि राइट टाइप ऑफ एजुकेशन स्टिमुलेट्स इंटेलेक्ट ऑफ अ पर्सन एंड ईगो ऑफ अ पर्सन, आइडेंटिटी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो इंटेलेक्ट और आइडेंटिटी को चेंज करने में फायदा ये है कि ये ज्यादा परमानेंट रिजल्ट देता है। अगर आपने किसी का इंटेलेक्ट कन्वर्ट चेंज कर दिया, है ना, इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर दिया किसी को, तो वो ज्यादा दिन तक वो काम कर पाएगा। लेकिन माइंड और सेंसेस के लेवल पे ही अगर आप किसी को स्टिमुलेट कर पा रहे हो, तो वो ज्यादा दिन तक लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो देयरफॉर of course then it follows that to stimulate senses and mind is easy। आप समझे बात को, माइंड और सेंसेस को स्टिमुलेट करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। आप देखो एक्टर्स जो है वो कैमरे के सामने रो देते हैं, है ना, ऑडियंस भी रोने लगती है। क्यों? क्योंकि वो इजी है। आप समझे ना बात को। मुझे याद है मैं जब कोचिंग में पढ़ता था, तो एक टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, फिटजी फिटजी में केमिस्ट्री टीचर थे। वो बता रहे थे कि इंडियंस को मूवी देखना नहीं आता। तो पूछा क्यों, क्या हुआ सर? तो बता रहे थे, हम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया मूवी देखने के लिए। उस टाइम पे मूवी लगी थी, वो बता रहे थे कल हो ना हो, बहुत पहले की बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि शाहरुख खान को कैंसर था, तो मेरा फ्रेंड रोने लग गया। तो बता रहे थे कि लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं, माइंड इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता। वो तो खैर जो भी बता रहे थे, बट पॉइंट ये है कि माइंड को स्टिमुलेट करना आसान है, लेकिन किसी के इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट करना, कन्विंस करना कि भाई कैंसर बहुत रियली में बहुत बड़ा खतरा है, यू शुड बिकम साइंटिस्ट एंड रिसर्च ऑन दैट। ये कितना डिफिकल्ट काम है। लेकिन ये आसान है कि किसी को कैंसर हो गया, आप रुला दो, किसी को रो रहा है पर्दे के पीछे, और जो मूवी देख रहा है वो भी रो रहा है ना, रोएगा फिर घर चला जाए, पॉपकॉर्न खाएगा फिर घर चला जाएगा, 2 दिन के बाद से फिर से वही लाइफ। तो आप समझिए कि हम जो एजुकेशन देना चाह रहे हैं लोगों को, इट इज, we are trying to not only cater to senses and mind. Of course we do not neglect the demands of senses and mind, try to understand, but we want to more address or stimulate intellect and ego। ये ज्यादा फोकस है ना इसके ऊपर। और ये करने के लिए सेंसेस और माइंड को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है, और एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, बट वो सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो रॉन्ग टाइप ऑफ एजुकेशन है, it only stimulates senses and mind, therefore it is of no use actually। So this is why, due to 3 reasons, because
what education we are trying to give, it provoking someone to change, है ना, and it is stimulating someone's intellect and identity, and third, it needs commitment. So these three things makes the job of educators little tough, है ना. So that is why you will see that people prefer to watch YouTube videos rather than read books, है ना. And you will people prefer to watch web series, है ना, fictional stories over uh, doing courses on Coursera, EDX or Udemy, for so that they can develop some skills, है ना. So these both things exist on same platform. These both things also exist on same platform. Books are also online, है ना, YouTube, but people, you will see that they prefer one over the other. Why? Because उसमें कमिटमेंट नहीं है ना. जो तीन चीजें हमने डिस्कस की पहले, वो चेंज करने के लिए आपको प्रोवोक नहीं करता इतना ज्यादा, है ना. ऐसा नहीं कि चेंज करने के लिए राइट डायरेक्शन में चेंज करने के लिए प्रोवोक नहीं करता, एजुकेट करता है आपको. आप जिस गलत डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो उसी में तेजी से आपको लेके जाएगा, लेकिन चेंज करने के लिए प्रोवोक नहीं करेगा, है ना. और अगर चेंज करने के लिए प्रोवोक कर भी रहा है तो गलत रास्ते भी कई सारे हैं, है ना. तो उसी के अंदर ये रास्ते से इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते से इस रास्ते पे, तो वो भी चेंज, उसको भी चेंज कहते हैं लोग. मटेरियलिज्म में भी कई सारे एक्टिविस्टिक आइडियोलॉजीज हैं. कई लोग जो हैं इस तरीके के एक्टिविस्टिक चीजें, रिवॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, वो चेंज लाने का प्रयास करते हैं, बट उनका चेंज है कि एक गलत रास्ते से दूसरे गलत रास्ते पे, है ना. फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर. पहले फ्राइंग पैन में जल रहे थे, अब चेंज कर दिया, फायर में जल रहे हैं डायरेक्ट. सो but we are the change which we are talking about, from wrong path to right path, you know. So that is why people prefer these things. So conclusion is that an educator should have mindset of an educator, not as an, do not think as an entertainer, you know. We are doing very important work even if it is not in limelight. Try to understand. This doesn't mean that it will not come, it cannot come in limelight. It will come, but initially when you start to do, you may not see that भाई content जो है limelight में आ रहा है या बहुत ज़्यादा, but it will create deeper impact. And of course, again, I said, it doesn't mean that we will not get more views. There are formulas, है ना, there are principles to do that. And if we work on that, if we enhance our quality, if we enhance our teaching ability, then we can get that also. उसका case study मैं आपको बताऊंगा. Second conclusion is that, तो इसके रिगार्डिंग मैं 2 दिन पहले एक रूम कन्वर्सेशन सुन रहा था प्रभुपाद का. तो उस रूम कन्वर्सेशन में शायद मॉस्को का कन्वर्सेशन था. उसमें एक स्कॉलर था, साइंटिस्ट था, स्कॉलर था, वो बैठा हुआ था. तो उसने एक पॉइंट बोला प्रभुपाद को. प्रभुपाद ने बोला कि सी वी हैव सॉल्यूशन. तो उसने बोला कि तो कितने लोग हैं आपको फॉलो कर रहे हैं. तो वेरी फ्यू आर देयर. द मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ पीपल, दे आर नॉट टेकिंग इट अप. तो प्रभुपाद उसको बहुत डांटने लगे. बोले कि व्हाई आर यू टेकिंग परसेंटेज. और प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया उसमें. बोला कि इन अ नाइट स्काई देयर इज मून एंड देयर आर स्टार्स. नाउ मून इज गिविंग मोर लाइट, ओके, बट यू कम एंड से दैट लेट अस टेक परसेंटेज. परसेंटेज में कौन ज्यादा है, स्टार ज्यादा है कि मून ज्यादा है. प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग परसेंटेज ऑफ स्टार्स इन कंपैरिजन टू मून. सो प्रभुपाद कह रहे थे कि डू नॉट, वो भी हंस रहा था, वो स्कॉलर भी हंस रहा था. आप लोग रूम कन्वर्सेशन सुन सकते हैं वो सर्च करके. तो वो बता रहे थे कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग स्टार्स एंड मून, डू नॉट टेक परसेंटेज, कंपेयर हाउ मच लाइट दे आर गिविंग. तो लाइट जब आप देखोगे कि कौन ज्यादा लाइट दे रहा है, तो आपको पता चलेगा कि एजुकेटर्स आर ट्रेंडिंग. सो दिस इज माइंड सेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप क्वांटिटी नापेंगे, कितने व्यूज हैं, कितने लाइक हैं, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ स्टार्स इन कंपैरिजन टू मून, जो कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये गलत है. लेकिन अगर आप ये नापेंगे कि कौन ज्यादा लाइट दे रहा है ना, तो आप देखेंगे कि मून ज्यादा लाइट दे रहा है, ऑल्दो एक दो ही है, एक है मून, है ना, और स्टार जो है बहुत सारे, लेकिन लाइट. तो एज एन एजुकेटर, माइंडसेट का मतलब है कि यू शुड नो व्हाट वी ऑल शुड नो व्हाट वी हैव टू कंपेयर एंड मेजर. डू नॉट कंपेयर क्वांटिटी, कंपेयर इम्पैक्ट, है ना.
तो आप देखोगे कि प्योरली जो मटेरियलिज्म है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है लोगों के लाइफ में, है ना, जैसा हमने डिस्कस किया। बट आप देखोगे कि वहीं पे एजुकेटर्स हैं, हो सकता है कम हो बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा उनका, है ना। सो एज एन एजुकेटर माइंडसेट शुड बी टू नॉट काउंट, है ना, नंबर्स, है कि ट्राई टू काउंट इम्पैक्ट, कितना डीपर, हाउ मच डीपर इम्पैक्ट वी हैव गिवन, जैसे प्रभुपाद ने कहा। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन which every educator should be clear about. And second thing is that ये समझ याद रखना जरूरी है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं इट इज नॉट सुइटेबल फॉर मासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। इट विल ग्रेजुअली रीच टू द मासेस, बट पॉइंट इज दैट कि हर व्यक्ति के लिए नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ एजुकेशन इज नॉट फ्री। लोग सोचते हैं एजुकेशन फ्री है कि नहीं, पर एजुकेशन फ्री नहीं होता है। अगर एजुकेशन फ्री होता तो आप देखो कि मान लीजिए कि हम फीस नहीं लेते किसी व्यक्ति से, कि ठीक है आप स्कूल में एडमिशन करा दो सबका, जीरो फीस, कोई फीस नहीं लगेगा। तो एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मान लीजिए स्कूल में, तो 60 के 60 स्टूडेंट्स जो हैं सेम परफॉर्मेंस होना चाहिए उनका, बट सेम परफॉर्मेंस नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि पैसा अगर पिक्चर से हटा भी दें तो भी एजुकेशन फ्री नहीं है, इट डिमांड समथिंग, और वो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है देने के लिए, है ना। और क्या डिमांड करता है, तीन चीजें हमने डिस्कस किया ऊपर, चेंज, कमिटमेंट, है ना। और सो दीज थिंग्स पीपल, दीज थिंग्स वी डिमांड इन रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन, और जिसके पास है वही कर पाएगा, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको, जैसा प्रभुपाद का एक एनालॉजी था कि स्टार्स और मून का, अगर एक मून भी है तो उससे कई प्लैनेट्स को लाइट मिल सकता है, कई लोगों को लाइट मिल सकता है ना। इट कैन इम्पैक्ट लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। सो देयरफॉर वी शुड, तो वो मास, इस तरीके से मास तक भी हम पहुंच सकते हैं, है ना, एजुकेशन के जरिए से, बट इट विल बी अ ग्रेजुअल इफेक्ट। सो कैटर टू दोज कमिंग टू अस, अदरवाइज विल रिमेन फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नेवर ग्रो। हम यही सोचते रहेंगे लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, लेकिन जो 50 लोग आए हैं और कमेंट किया आपके वीडियो के ऊपर 15 लोगों ने, हम 15 लोगों से ज्यादा, आप अगर इंडिविजुअली भी देखो तो क्या 15 लोगों से ज्यादा आप फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते किसी को। क्या हमारे पास आप देखोगे वीक में आप ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति से, मान लो डेली भी अगर एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, और मंथ में एक व्यक्ति से 2 बार बात करना है आपको फॉलो अप करने के लिए, तो 15 दिन में देखो 15 लोगों से आप बात कर सकते हो, एक महीने में आप 15 लोगों को कैटर कर सकते हो, और उन 15 लोगों को आप लेके आगे जाओगे, अनलेस अनटिल यू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटर्स, आप इससे ज्यादा लोगों को कैटर ही नहीं कर सकते। तो अगर 20-25 लोग भी अगर आके कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, तो या 150-200 व्यूज भी हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कम है। आप अगर देखेंगे कि वी शुड मोर फोकस ऑन कैटरिंग टू दोज हु हैव कम, है ना। तो मैच्योरिटी ये है, मैच्योरिटी इज टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इवन वन न्यू पर्सन गेटिंग अट्रैक्टेड टू आवर कंटेंट, मून जिसको प्रभुपाद ने बोला। अगेन आई वुड लाइक टू अगेन रिपीट, आई नो दैट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट I am repeating it so that you do not get wrong idea. I am again repeating it that this doesn't mean that educators cannot get views, more views. It will happen, but we should manage keep our expectations according to quality of content we are producing, है ना। So तो वो एक आर्ट है एक्चुअली में, उसको ओन करने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप मान लो कल से भी कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और 150-200 लोगों ने देखा, तो इट इज अ सक्सेस। उसमें जो लोग आ रहे हैं, मान लो 10-15 लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, 150 लोगों ने देखा और 15 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, तो 15 लोगों से ज्यादा हम कैटर भी नहीं कर सकते लोगों को, ये 15 लोगों से ज्यादा आप बात भी नहीं कर पाओगे लोगों से, तो इतना इनफ है हमारे लिए। सो देयरफॉर प्रिंसिपल इज दैट, सुंदोपाल प्रभु बता रहे थे कि आवर प्रिंसिपल शुड बी कि एक व्यक्ति कम लोगों को कैच करे और ऐसे लोग बहुत सारे हों, रादर देन कि एक व्यक्ति हो और वो 1.5 लाख लोगों को फॉलो करवा रहा है। इससे ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, इससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास 1000 एजुकेटर्स हों और हर एजुकेटर 15-15 लोगों को टच कर रहा है, तो 15,000 लोग वैसे टच में आ गए, है ना। सो स्मॉल बट मैनी ओवर फ्यू एंड लार्ज, है ना, दैट इज द कंसेप्ट। नाउ लेट अस गो टू सेकंड कंसेप्ट, एंटरटेनर और एजुकेटर। तो कई बार
जो है डिवोटीज को डाउट होता है कि भाई उनको ऐसा लगता है कि एजुकेशन इट्स एजुकेशन वर्सेस एंटरटेनमेंट, है ना. सो इट्स एक्चुअली नॉट. क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ एन एजुकेटर कैन इंस्पायर समवन टू पे द प्राइस, जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि 3 प्राइस है. अब सवाल उठता है कि अगर आप किसी को कंटेंट दे रहे हो तो कैसे आप मेक श्योर करोगे कि वो प्राइस पे करे इंटरेस्टेड होके, है ना, और एजुकेशन कंटेंट ले. तो उसके लिए, और प्राइस क्या है, चेंज. he should be ready to change, he should be ready to give commitment, and he should be ready to change his intellect and identity priorities, है ना. अब ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, ये तीनों चीजें बहुत बड़ी है. तो इसको इसलिए लोग जो हैं जनरली प्रेफर नहीं करते कई बार इस तरीके के कंटेंट्स कंज्यूम करना जो कि उनको चेंज करने पे मजबूर करे, या बहुत ज्यादा कमिटमेंट हो, या इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग कंटेंट्स भी कई बार लोग कंज्यूम नहीं करते हैं. तो therefore educators, as an educators, it's our duty to know the art of inspiring someone to pay the price. और ये जो काम है ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट को मिक्स करके. तो ये टॉपिक क्यों रखा है, ये सेकंड कंसेप्ट क्यों रखा है, क्योंकि जनरली डिवोटीज मैंने देखा है कई बार सोचते हैं, या प्रीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो भी हैं, वो सोचते हैं कि केवल कंटेंट बनाना सफिशिएंट है. उनको कई बार ऐसा लगता है कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ बता रहे हैं, है कि नहीं, तो लोगों को आना चाहिए, सुनना चाहिए. केवल एब्सोल्यूट ट्रूथ बताना सफिशिएंट है, ऐसा उनको लगता है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी बिग मिसकंसेप्शन अमंग एजुकेटर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेटर्स का जिम्मेदारी केवल ट्रूथ बताना नहीं होता है. दिस इज मिसकंसेप्शन. ये भी एजुकेटर का जिम्मेदारी है कि वो जो बता रहा है वो सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके. वो जो बता रहा है वो अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करे. कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाए, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए, ये भी एजुकेटर का ही ड्यूटी है, एजुकेटर का ही जिम्मेदारी है. एजुकेटर का मतलब जनरली लोग समझते हैं आए और लेक्चर देके चले गए. ऐसा नहीं होता है. एजुकेटर का जिम्मेदारी ये भी है कि वो मेक श्योर करे कि जो मैंने लेक्चर दिया वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे. नहीं समझ रहे तो कैसे समझाना है ना. हाउ टू यूज एंटरटेनमेंट in doing it, है कि नहीं, how to use variety of. So therefore educators should have skills, should have tools to do all these things, है ना. they should not think कि बस मैंने वीडियो बनाया और लोग देख लेंगे. वीडियो बनाया आपने, उसको एडवर्टाइज करने का भी जिम्मेदारी आपका है, उसको प्रमोट करने का भी जिम्मेदारी आपका है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का भी जिम्मेदारी हमारा है ना. इसलिए एजुकेटर शुड ऑल्सो हैव मार्केटिंग स्किल्स. तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कुछ मार्केटिंग स्किल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आगे कोर्स 2 ऑनवर्ड्स वी विल बी अप्लाइंग दैट. एंड सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है ना, और कैसे जो है लोग डेटा कंज्यूम करते हैं, कैसे जो है कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कौन सा कंटेंट छोटा रखना चाहिए, कौन सा कंटेंट बड़ा रखना चाहिए, कब उनको 5 मिनट का वीडियो देना है, कब उनको 15 मिनट का वीडियो देना है, कब उनसे कोर्स करवाना है. तो ये सब जो है एजुकेटर शुड हैव आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. एजुकेटर का मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ा और लेक्चर दिया और फिर चले गए, या पढ़ा और वीडियो बनाया और फिर चले गए, है ना. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. सो एजुकेटर शुड नो कि हाउ टू मिक्स एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, है ना. और जैसे जैसे आप ऑडियंस का कैपेबिलिटी जो है, कैपेसिटी है, या आप कह सकते हैं कि कोर कंटेंट के लिए टेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप एजुकेशन कंटेंट का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली, है ना. तो एक एजुकेटर का मतलब है ही शुड नो कि कितना एंटरटेनमेंट देना है और कितना एजुकेशन देना है, कैसे दोनों को मिक्स करना है ना. दिस इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेटर एक्चुअली. तो ये आर्ट जानना जरूरी है. और जनरली एजुकेटर्स ऐसा सोचते हैं कि केवल एजुकेशन दे दिया बस हो गया, है ना, और कोई हमारा और कोई ड्यूटी नहीं है. ऐसा नहीं है. So educators should know how to mix these two things in proper proportion depending upon taste of a person. So now let us come to a concept where people there is no such thing as harmless entertainment. Harmless entertainment, कई लोग सोचते हैं कि मूवी जो है वो harmless entertainment.
बट ये मिसकंसेप्शन है. All types of contents have educational, some percentage of educational content in it, some percentage of, you can say, preaching to it. Even जो कंटेंट आप ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हो जो आपको लगता है कि अरे ये तो प्योर एंटरटेनमेंट है, वो भी प्योर एंटरटेनमेंट नहीं होता है. प्योर एंटरटेनमेंट इज अ मिथ. आप समझे? दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रीच यू समथिंग, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू एजुकेशन. बस डिफरेंस इतना है कि वो जो एजुकेशन है वो लोग नेचुरली इंक्लाइंड है गड्ढे में जाने के लिए, और आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो आप लोगों को एक पाथ से दूसरे पाथ पे ला रहे हैं, तो थोड़ा टफ हो जाता है. बट डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्योर एंटरटेनमेंट. ऐसा नहीं होता है. दे आर सेलिंग फिलोसफी, एथिस्टिक आइडियोलॉजी, मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, है ना. दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट to you, something they are selling. As I discussed earlier कि educators जो entertainers होते हैं, they have a price tag, है ना. They do not have their own, they do not have their own intellect, they do not have a philosophy. They may have a philosophy, but that is not theirs. That they have their masters who give them philosophy and give them money, और उसको बोलते हैं जाओ इसको promote करो, और वो लोग यहाँ पे ट्रेंड करते हैं फिर. So therefore there is no such thing as pure entertainment. There is always education involved. Even इस तरीके के frivolous videos में भी there is education. Only difference is that that education is materialism. It is promoting materialistic education. और वो ट्रेंड इसलिए करता है उस टाइप का एजुकेशन क्योंकि नेचुरली लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. So question arises, who are we? As I said, we are not just educators, we are educators plus entertainers. Try to understand. What does this mean? I already discussed this. What does this mean? कि हमारा काम केवल कंटेंट बनाना नहीं है, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना भी हमारा ड्यूटी है, उसको प्रोमोटेबल बनाना भी हमारा ड्यूटी है, उसको मार्केट करना भी आना चाहिए. केवल वीडियो बनाना नहीं आना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वीडियो बनाने के बाद व्हाट टाइप ऑफ टाइटल वी शुड कीप सो दैट इट गेट्स मैक्सिमम क्लिक. We should also know what type of thumbnail we should design so that it gets maximum click, है ना. We should also know कि in between our educational videos what type of contents we should insert so that it keeps the audience engaged. This is also our duty. So दो चीजें हमने अभी तक डिस्कस किया. हमारा आइडेंटिटी क्या है? तो हमारा आइडेंटिटी केवल एजुकेटर का नहीं है. वी शुड नो हाउ टू मिक्स एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. और दूसरा चीज हमने डिस्कस किया कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी शुड हैव, है ना, एज एन एजुकेटर. व्हाई? बिकॉज द टाइप ऑफ एजुकेशन विच वी आर गिविंग इज लिटिल टफ. इट डिमांड्स, है ना, मेनी टाइप्स ऑफ कमिटमेंट, चेंज. सो इट इज लिटिल टफ. सो अकॉर्डिंगली वी शुड हैव एक्सपेक्टेशन. एंड सेकेंड थिंग इज दैट ऑन विच आवर एक्सपेक्टेशन शुड डिपेंड कि आप कितने एक्सपर्टली इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं. दोनों चीजें मतलब एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये आर्ट है एक्चुअली एक, है ना. और मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा ऐसे एजुकेटर्स का जो कि एजुकेटर्स हैं, सीरियस एजुकेटर्स हैं, बट वो इस तरीके से मिक्स करते हैं एंटरटेनिंग चीजों को कि उनका एजुकेशनल कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड दे आर अट्रैक्टिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल to their contents, lakhs of people, millions of people to their content. तो आप जितना एक्सपर्ट होते जाएंगे उसी हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टीज लेवल हमारा ये है और एक्सपेक्टेशन इतना है, तो इससे फ्रस्ट्रेशन होगा फिर, है ना. सो देयरफॉर दीज टू कांसेप्ट्स वी डिस्कस. नाउ लेट अस गो अहेड. नाउ दिस इज द मेन पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस. अब आपको मैं, अभी तो मैं थ्योरी बता रहा था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. पीपीटी के अंदर नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको ब्राउजर में शो करूंगा कि अलग अलग वेबसाइट्स. आई विल शो यू मेनी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेटर्स ट्रेंड होते हैं, है ना. एंटरटेनर्स ट्रेंड नहीं होते. एंटरटेनर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते ऐसे प्लेटफॉर्म पे. कई ऐसे इवन एंटरटेनमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कई एजुकेटर्स हैं हु आर गार्निशिंग लॉट ऑफ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स सिंपली बेस्ड ऑन एजुकेशनल कंटेंट्स, है ना. और उन सब की क्या खासियत है ये मैं आपको ये हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मैं एक और कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता था कि वी एज ए एजुकेटर
जैसा मैंने आपको बताया कि वी सी दिस वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड अ बॉक्स, वी थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज अ बॉक्स, और हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो है कलयुग में, हर व्यक्ति गया गुजरा है, किसी के अंदर कोई कोई टैलेंट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, भक्ति कर ही नहीं सकते, है ना। एजुकेशनल कंटेंट देके क्या फायदा, प्रभु जी सब टिकटॉक में लगे हैं, पबजी में लगे हुए हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि दुनिया खराब है, ये इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को देख रहे हैं, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बिकॉज जनरली दीज प्लेटफॉर्म्स आर ओनली विजिबल ऑनलाइन और इन फ्रंट, है ना। But we as an educator, if we want to become educators, and we if we want to be enthusiastic in preaching, then we should very clearly know कि there is another world, है ना. In this world only there is another world where education is in lot of demand, है ना. ऐसे भी प्लेटफॉर्म है, ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन चाहते हैं, and we can cater to them very easily. So first duty as an educator is that कि first of all let us refine our taste, है ना. अगर हम केवल इस तरीके के कंटेंट्स कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर माइंडसेट आएगा कि लोग यही देखते हैं, है ना. तो इसलिए वी शुड नो व्हाट प्लेटफॉर्म्स टू स्पेंड टाइम ऑन, व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स वी शुड कंज्यूम एज एन एजुकेटर, है ना. एंड व्हाट टाइप्स ऑफ व्हाट आर द एजुकेटर्स व्हिच वी कैन फॉलो और टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम. वी मे नॉट एग्री विद देयर फिलॉसफी, try to understand, but we can see how they are working, that inspiration we can take at least, and we can promote our philosophy, and which we are studying in Prabhupada books and like that. So therefore educators first of all should work on their taste, है ना. अगर आप जो है जंक कंटेंट्स केवल कंज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट नीड्स इलेबोरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. कभी मैं मे बी आई कैन क्रिएट सम सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं. आप देखो ये मशीन है, ठीक है ना, आप इसको ट्रेन कर सकते हो. इवन टिकटॉक ऑल्सो हैज एजुकेशनल कंटेंट्स एंड यू कुड, अब तो खैर टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक को भी आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि उसमें केवल एजुकेशनल कंटेंट्स आपकी फीड में शो हो, है ना. और ये मैंने करके देखा है. जब बैन होने वाला था तो उस टाइम पे आई डाउनलोडेड टिकटॉक एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू यूज इट टू सी. मुझे बहुत मुझे जो है, मैं खुद भी मिसकंसेप्शन था मेरा. मुझे खुद भी बहुत सरप्राइजिंग लगा ये देख के कि टिकटॉक पे देयर वर लॉट ऑफ एजुकेटर्स क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट्स इन 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियोस. और तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट प्लेटफॉर्म एक्चुअली, है ना. इट्स अबाउट हाउ वी ट्रेन दोज प्लेटफॉर्म्स, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट्स दे शो टू अस, किस टाइप का कंटेंट वो हमें शो करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. यूट्यूब के ऊपर एक जस्ट एग्जांपल दूंगा. आप जब यूट्यूब वीडियो खोलते हो तो आप उसके ऊपर ऐड आता है कई बार, है ना, अगर वीडियो मोनेटाइज है तो. किस तरीके का ऐड आ रहा है आपके यूट्यूब वीडियो के ऊपर, उससे आप पता कर सकते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं. मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, एक एक गूगल प्रोफाइल है मेरा, जिसमें मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही देखता हूँ. इवन जो है प्योरली एजुकेशनल वीडियोस. और मैं कुछ दिन के बाद मैंने देखने लगा कि उसके अंदर जो ऐड आ रहा है, रिकमेंडेशन आ रहा है, वीडियो का ऐड आ रहा है, वो सारे एजुकेशन कंटेंट है. एक भी स्पोर्ट्स का कंटेंट नहीं है, एक भी एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं है, किसी कोई फनी वीडियो नहीं है, कोई मीम नहीं है, कोई कैट एंड डॉग वीडियो नहीं है, कुछ नहीं. ओनली एजुकेशन कंटेंट. सो इट इज पॉसिबल टू ट्रेन, है ना. आप सोशल मीडिया है, जैसे आप कहीं पे जाते हैं सीट पे बैठने के लिए, तो आप पहले उसको साफ करते हैं, ऐसे ही नहीं बैठ जाते. उसी तरीके से ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, आप उसको साफ कर सकते हैं वहां पे टाइम बिताने से पहले. वो साफ करने का तरीका क्या है, मे बी थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, और उसमें मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, तो मे बी कोई एक सेपरेट वीडियो मैं उस पर बना सकता हूँ बाद में. बट पॉइंट इज दैट कि एज एन एजुकेटर we have to first of all refine our taste, what type of platforms we visit, what type of contents we consume, and what type of educators we follow. तो सबसे पहला केस स्टडी में आपको दिखाना चाहूंगा प्रेगर यू.
प्रेगर यू जो है ये एक व्यक्ति ने शुरू किया है, डेनिस प्रेगर नाम है उसका, और आप देख सकते हैं उनका मोटो है शॉर्ट वीडियोस बिग आइडियाज, अ वर्ल्ड ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स 5 मिनट्स एट अ टाइम। 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बनाते हैं। अब मैं पीपीटी से बाहर जाऊंगा और मैं आपको ब्राउजर पे आई विल शो यू इनके बारे में। सो इनका यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा और यूट्यूब चैनल भी। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू कि हाउ देयर आर एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, है ना, विच इज अ लॉट इन डिमांड। जैसे आप देखो प्रेगर यू में 2.79 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ये मत सोचिए कि केवल एंटरटेनिंग कंटेंट ही ट्रेंड करते हैं, एंटरटेनिंग कंटेंट ही डिमांड में रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अब देखो ये प्रेगर यू जो है इनका वेबसाइट है, ये क्रिश्चियंस हैं, वैसे जुडायो क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं ये। इनके वीडियोस अगर आप देखोगे तो दे मेक इनके जो वीडियोस होते हैं 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के वीडियोस होते हैं जो टॉपिक्स के ऊपर बनाते हैं। जैसे ये वीडियो है हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, है ना, वेयर डू यू वांट टू लिव, रेड स्टेट और ब्लू स्टेट, नेवर एपोलोजाइज टू द मॉब, है ना। तो इनके जो वीडियोस हैं खासकर अमेरिका से रिलेटेड हैं एक्चुअली में। व्हाट्स रॉन्ग विथ विंड एंड सोलर एनर्जी, है ना, व्हाट हैपेंड ऑन 9/11। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, बट पॉइंट ये है कि ये सब एजुकेशनल कंटेंट है ना। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग आपको एजुकेशनल कंटेंट दिखाता हूँ जो कि इट इज अगेंस्ट एथिज्म आल्सो, दे क्रिएट कंटेंट अगेंस्ट एथिज्म आल्सो। ये देखिए, व्हाट्स अ ग्रेटर लीप ऑफ फेथ, गॉड और मल्टीवर्स। मतलब एथिज्म जो है वो उसमें ज्यादा फेथ चाहिए या गॉड में बिलीव में ज्यादा फेथ चाहिए। अब आप इस पे देखो, एक वीडियो है, इस पे आप देखेंगे 15 लाख व्यूज है ना, और 6,613 कमेंट्स हैं, 14,000 लाइक्स हैं, डिसलाइक्स भी हैं बट लाइक्स भी हैं काफी, और इतने 15 लाख व्यूज हैं, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि कलयुग में लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन और एजुकेशनल कंटेंट्स और कॉज बेस्ड कंटेंट्स, है ना। सो ये प्रेगर यू एक प्लेटफॉर्म है। अब इनका वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने किस तरीके से वेबसाइट को प्रमोट किया, अपने कॉज को प्रमोट किया। फ्री वीडियोस फ्री माइंड with 4.1 billion views and counting, our videos are changing the conversation about American ideas, है ना। 5-5 मिनट की वीडियोस बनाते हैं और हर वीडियोस आप देखो यहाँ पे प्रमोट भी किया है 5 मिनट वीडियोस, और हर वीडियो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स आके बोलते हैं, एजुकेटर्स हैं इनके पास। अब देखो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें Is there a problem with universal? अब ये एजुकेटर है इनके, ही इज स्पीकिंग, ओके, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। अब देखो दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज सेलिब्रेटिंग कोलंबस, तो ये देखो कि कोई और एजुकेटर आके बोलेगा, He ventured where no other man of his age ये has the देखिए, truth. he is different person. So this is a platform, a very ideal platform where you can find a very similar idea of what we are trying to do. इस पे आप देखोगे वीडियोस हैं, कंटेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ कंटेंट्स हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है इन्होंने, है ना। अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, फ्रॉम पॉलिटिकल इश्यूज टू साइंस टू लाइफ टू स्पिरिचुअलिटी, बाइबल से ऑफ कोर्स ये लोग डिस्कस करते हैं, बट और दे हैव एजुकेटर्स आल्सो, है ना। उनके पॉडकास्ट हैं, ये पॉडकास्ट हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट दे शो। ये बुक क्लब बनाए इन्होंने रिसेंटली, मैं आपको दिखाता हूँ। बुक क्लब में क्या करते हैं ये, दे टेक अ बुक एंड दे डिस्कस ओवर इट फॉर 15 मिनट्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, दे डिस्कस ओवर इट। ये देखिए, ये बुक क्लब के वीडियोस हैं। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, है ना। आप देखो इसके ऊपर भी 4 लाख के अराउंड व्यूज हैं, और आधे घंटे में दे हैव टेकन अ बुक एंड देन दे विल डिस्कस ओवर इट। ऐसे करके कई सारे वीडियोस हैं। मींस पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये एजुकेशनल कंटेंट है ना। और केवल एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, दे आर ट्राइंग टू गिव राइट एजुकेशन टू पीपल, है ना। ऑफ कोर्स दे आर
trying to propagate Christianity, Christian values, but nonetheless it is anti-materialism. So but they are successful, they are getting views, है ना. तो ये मत सोचिए कि कोई डिमांड नहीं है एजुकेशन का, लोग जो है सुनना नहीं चाहते, कलयुग में सब बेकार हैं, गए गुजरे लोग हैं, ऐसा नहीं है. दैट इज द होल पॉइंट. कि जैसे ही हम ये सोचते हैं फिर प्रीचिंग का कोई मकसद ही नहीं रह जाता, प्रीचिंग कंसेप्ट का कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाता अपना, है ना. कि अगर हम यही सोच लेंगे कि डिमांड ही नहीं है इसका कंटेंट का, तो इस तरीके से आप देखो दे हैव लॉट ऑफ क्रिएटेड लॉट ऑफ टॉपिक्स. हाउ सोशलिज्म ruined माय कंट्री, है ना. इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, डोंट फॉलो योर पैशन, मिडल ईस्ट प्रॉब्लम, है ना. फैक्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स. दीज आर एजुकेशनल वीडियोस और 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता. और आप नाम देखेंगे नीचे, अलग अलग एजुकेटर्स इसको वीडियो को आके प्रिपेयर करके बोलते हैं. तो दे आर वेरी मच इन डिमांड. और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. ये इनके चैनल का रिपोर्ट है कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना इम्पैक्ट किया इन लोगों ने लोगों को. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये केवल एंटरटेन नहीं करना चाहते लोगों को, ये लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं, तो ये नापते भी हैं. अदर देन दैट यू कैन सी हियर दे हैव क्रिएटेड कॉलेज के लिए जैसे हम क्लब्स बनाते हैं, वैसे इन्होंने क्लब्स बनाए हुए हैं, है ना. उसको प्रेगर फोर्स कहते हैं. और इसमें बोलते हैं कि अगर आप अपने कॉलेज में ये प्रेगर यू के वीडियोस स्प्रेड करना चाहते हैं तो कॉलेज प्रीचिंग भी किया जा सकता है इस तरीके से ऑनलाइन कंटेंट से. दैट इज द पॉइंट. तो ये स्टूडेंट एम्बेसडर्स बनाते हैं कॉलेजेस में. तो मान लीजिए, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वी हैव वैरायटी ऑफ वीडियोस लाइक दिस विच इज प्रमोटिंग आवर कॉज. देन वी स्टार्ट एन इनिशिएटिव, है ना. कंटेंट हमने बना लिया और तब हम इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम उनको बोलते हैं आप जो व्यूअर्स हैं, आप में से जो भी लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, तो अप्लाई टू बिकम आवर स्टूडेंट एम्बेसडर, है कि नहीं. यू कैन बिकम आवर स्टूडेंट एम्बेसडर एंड थ्रू दैट दोज व्यूअर्स वी कैन एंटर इनटू कॉलेज, वी कैन स्टार्ट कॉलेज प्रीचिंग आल्सो. सो दिस इज हाउ दीज पीपल आर डूइंग प्रेगर यू. अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, आप जाके इसको रिसर्च कर सकते हैं, है ना. सो लाइक दैट ये उन्होंने रिपोर्ट बनाया है. इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, तो आप देखेंगे बड़े सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं. विजन स्टेटमेंट बनाए इन्होंने, है ना. और इम्पैक्ट को मेजर भी कर रहे हैं कि जनवरी में नियरली 10,000 मेंबर्स, प्रेगर फोर्स मतलब कॉलेज मेंबर्स, दे held its first international retreat with student ambassadors from 11 countries and learning skills at PragerU headquarters, है ना. March and February the Cadence Owen shows, our first foray into long form content, celebrated its 1-year anniversary just as the mainstream media ramped up its racist framing of America. PragerU's new channels on Apple TV and Roku are America's first conservative streaming TV channels offering 100% free content. तो they are मेजरिंग ऑल्सो देयर इफेक्ट, है ना. अब देखो ये मेजर कर रहे हैं कि हमने जो वीडियोस बनाया लास्ट मंथ, ये वीडियो 63.1 मिलियन व्यूज हो चुका है इसका. इस वीडियो का 31.5 मिलियन, मतलब ये टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं इनके, टॉप 6 टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस. नए नए रिलीजेस कौन से हुए हैं, है ना. इन लेस देन 18 months वी catapulted beyond 5-minute video format to form destination hub for daily viewers visit. मतलब बता रहे हैं कि पहले हम केवल 5 मिनट वीडियोस बनाते थे, अब हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स भी बना रहे हैं. ये सारे उनके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स हैं. फिर ये बता रहे हैं कि बुक क्लब हमने शुरू किया जिसमें बुक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. अब देखो ये सारा जो है एजुकेटर्स हैं, दीज आर एजुकेटर्स, है ना. ये सारा एजुकेशनल कंटेंट है, बट दे आर गेटिंग सक्सेस एंड दे आर हाउ सिस्टमेटिकली दे आर डूइंग इट. दे आर प्रोड्यूसिंग बाय एनुअल रिपोर्ट्स, है ना. साल में 2 बार रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस रहा है, ये टेस्टिमनीज है हमारे व्यूअर्स के, है ना. सो तो ये मत सोचिए कि एजुकेशनल कंटेंट का डिमांड नहीं है ना. कलयुग बहुत बढ़ गया है और कोई एजुकेशन कंटेंट का कोई डिमांड नहीं है, तो ऐसा नहीं है. दैट इज द होल पॉइंट. सेकंड प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू शो यू इज बाइबल ऐप, ठीक है ना. ये बाइबल ऐप क्या है, बाइबल ऐप के बारे में पता चला, मैं एक बुक पढ़ रहा था, हुक्ड. उस बुक में बताया हुआ था कि कैसे
हैबिट फॉर्मिंग एप्स डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे एप्स जो कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसका एनालिसिस था। तो उस बुक में सारा थ्योरी बताने के बाद लास्ट चैप्टर में उन्होंने बताया कि एक बड़ा ही नए तरीके का ऐप है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्चुअली, ये पूरा वेबसाइट भी है इसका, जिसने जो है बाइबल को वायरल कर दिया है और बाइबल रीडिंग को इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो वहां से मुझे इस ऐप के बारे में पता चला और फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया थोड़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, बाइबल ऐप। ये ऐप है इनका, और ये वेबसाइट है, ठीक है ना। ये इनका वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं, दे हैव रीड गेट अ फ्री बाइबल फॉर योर फोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर, रीड बाइबल नाउ। अब इन्होंने किया क्या है, वैसे तो बाइबल पढ़ाने को तो भगवद गीता भी हमारा ऑनलाइन है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने बस बाइबल डाल के छोड़ नहीं दिया है कि लोग पढ़ ही लेंगे, हमने डाल दिया तो। इन्होंने बाइबल रीडिंग को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है ऑनलाइन कंटेंट्स के थ्रू। अब ये देखिए, ये सारे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। कुछ अलग अलग नीड्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे हाँ, जैसे आप देखेंगे एंगर, यहाँ पे एंगर लिखा हुआ है। अगर आप एंगर पे क्लिक करते हैं, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाइबल कैसे पढ़ाते हैं। आपने एंगर पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे एंगर के ऊपर। जैसे पहला है एनिमीज ऑफ द हार्ट, एंगर इज एनिमी ऑफ द हार्ट। 5 डे टू फ्रीडम फ्रॉम एंगर, है ना। फॉर पेरेंटिंग, एंग्री पेरेंटिंग, बहुत स्पेसिफिक नीश टारगेट किया है कि एंगर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इस टॉपिक में ये डिस्कस करें 5 डेज टू फ्रीडम फ्रॉम एंग्री पेरेंटिंग, है ना। हीलिंग नेगेटिव इमोशंस व्हेन गॉड डजंट मेक सेंस, द अनप्लग्ड चैलेंज, केयर गिवर, है ना, वॉच योर माउथ, ऑफ साइड, एटीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेंसी, द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर। तो ऐसे करके आप देखोगे एक टॉपिक पे एंगर टॉपिक लिया और उस टॉपिक के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स क्रिएट कर दिए इन्होंने। अब मान लीजिए कि हम एक टॉपिक पे क्लिक करते हैं, अभी देखना ये बाइबल पढ़ाएंगे, लेकिन कैसे इंटरेस्टिंग वे में आपको बाइबल पढ़ाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे लेट अस क्लिक ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर। तो मैंने ये क्लिक किया कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर, तो इसमें आएगा कि स्टार्ट रीडिंग प्लान, 7 डेज का रीडिंग प्लान है, लेट मी स्टार्ट इट। आप फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के ऊपर बाइबल के जितने भी वर्सेस हैं उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ये नहीं बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 से पढ़ जाओ बाइबल, बाइबल उठाओ। कई लोग पूछते हैं भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसका पूरा ऑनलाइन कंटेंट बना दिया इसके ऊपर कि बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि बाइबल उठाओ और चैप्टर 1 से पढ़ जाओ पूरा, है ना। वो लोगों को समझ में ही नहीं आता एक्चुअली में। भगवद गीता भी मैंने देखा है, कई लोग पढ़ते हैं, हम बांटते तो हैं, कई लोग पढ़ते हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आता अनलेस अनटिल जो बहुत फेथफुल है पहले से, दोज हु हैव लॉट ऑफ पायटी, या तो पिछले जन्म में भक्ति करके आए हैं, देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर। या तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो व्यक्ति कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो भगवद गीता के अलावा, then they are able to understand. But we as an educator, we have to make sure that even if people do not have sufficient piety, then also how to make them interested. And gradually when they start to read, they will get interested and they will start to read more also, है ना। तो इन्होंने यही किया है। अब आप देखो, आपको बाइबल फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ा रहा है, आप आए वेबसाइट पे, आपने देखा कि मुझे एंगर का प्रॉब्लम है, आपने एंगर पे क्लिक किया। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आए थे आप, आपने एंगर का प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे आप। आपने एंगर पे क्लिक किया, आपने देखा एंगर से रिलेटेड कई सारे टॉपिक हैं, तो आपने देखा कि भाई मेरा इंटरेस्ट अभी मैं जानना चाहता हूँ कंसेक्वेंसेस क्या है एंगर के। अब आप जैसे ही क्लिक किया तो वो कह रहा है कि एंगर के कंसेक्वेंसेस जानने के लिए अब आप ये पर्टिकुलर वर्सेस हैं बाइबल में, वो पढ़िए। डे अब 7 दिन में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि पहले दिन ये दोनों चीजें पढ़िए। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। Thank you for subscribing to our series on anger. Each reading plan has been designed to stand alone or be explored as part of the series. तो अब देखो, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा इसने एंगर के बारे में,
ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, और लास्ट में बाइबल को कोट किया, ठीक है ना, सब कुछ बताया। अब आप ये पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि डॉक्टर स्टैनली साइकोलॉजिस्ट को कोट कर रहे हैं, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहे हैं, है ना, बाहर के किताबों के कंटेंट्स हो सकता है मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को भी कोट करें, लेकिन फाइनली लास्ट में जाके इन्होंने बोला कि अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे बताया है ये सारे यहाँ पे बाइबल में यहाँ पे दिया गया है। अब आप आगे चलिए, अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। अब देखिए बाइबल पढ़ा रहा है, ठीक है ना, बाइबल 19 चैप्टर 11 वर्स, द डिस्क्रिशन ऑफ अ मैन डिफरeth हिज एंगर एंड इट इज हिज ग्लोरी टू पास ओवर अ ट्रांसग्रेशन। अब ये समझ में नहीं आया इसलिए इसने आर्टिकल लिखा, उस वर्स को समझाने के लिए आर्टिकल लिखा इसने। अब ये आर्टिकल जो इसने लिखा है इस वर्स को समझाने के लिए, ये डिवोटी को ध्यान में रख के नहीं लिखा है, क्रिश्चियंस को ध्यान में रख के नहीं लिखा है, ये ऐसे लोगों को ध्यान में रख के लिखा है जो एंगर के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो ये पढ़ा मैंने आर्टिकल, और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जब मैं ये वर्स पढ़ूंगा तो मुझे ये वर्स समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ये वर्स वैसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली मैंने बाइबल पढ़ लिया, ठीक है ना, और अब ये बता देगा प्रोग्रेस हो गया है आपका, आप एक दिन फर्स्ट दिन आप कवर कर चुके हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट करता हूँ, वैसे ये सेकेंड डे भी पढ़ सकते थे, बट अगर मैं आज पढ़ता हूँ मान लीजिए, तो फिर से स्टार्ट रीडिंग, फिर से आर्टिकल देखिए। Those who study human behavior have noted a number of characteristics in angry people. Angry people have these type of characteristics. बड़ा सिस्टमैटिक आर्टिकल लिखा। अब आपको बाइबल का वर्स पढ़ाएगा जो कि इससे रिलेटेड है। A wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. अब ये वैसे पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये। जैसे संस्कृत पढ़ते हैं लोग तो समझ में नहीं आता है, भगवद गीता भी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। उसको समझाने के लिए इन्होंने आर्टिकल लिख दिया। किसको ध्यान में रखते हुए? ये ध्यान में रखते हुए कि एंगर के प्रॉब्लम से जो व्यक्ति जूझ रहा है वो ये वर्स पढ़ रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस वर्स के कई मीनिंग हो सकते हैं, इसी से आप डिवोशनल मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप डिवोशन में इंटरेस्टेड हैं तो सेम वर्स वो पढ़ाएगा, लेकिन आर्टिकल डिफरेंट होगा उसका। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यू शुड नो। अब आपको मैंने बता दिया, अब आप चाहे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप देखिए एंग्जाइटी, एक टॉपिक ले लिया। मैं बाइबल पढ़ने नहीं आया हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि चलो ठीक है एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। मैं क्लिक करता हूँ, मुझे दिखा कि 7 थिंग्स बाइबल सेज अबाउट एंग्जाइटी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डीलिंग विथ एंग्जाइटी, हाँ मैं जानना चाहता हूँ हाउ टू डील विथ एंग्जाइटी। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, अब ये बताएगा कि ठीक है स्टार्ट रीडिंग प्लान, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग प्लान। इसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा, मैं पहले से साइन इन किया हुआ इसलिए ये डायरेक्ट आ रहा है। फिर से आप देखिए वही आर्टिकल बाइबल वर्स, है ना, ये देखिए आर्टिकल है। अब इसके बाद बाइबल का वर्स पढ़ाएगा वो। लेकिन आर्टिकल पढ़ने के बाद आप बाइबल पढ़ोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा बाइबल, ठीक है ना। और आप बड़े ही एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, एंग्जाइटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं आप, तो इसका फायदा क्या है ना, एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि जब आप इस तरीके से स्क्रिप्चर्स पढ़ाते हैं किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति को मैसेज जाता है कि यार स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत कुछ है जो प्रैक्टिकल है मेरे लिए, है ना। तो इसलिए माइथोलॉजी नहीं है, इसके अंदर कई सारी यूजफुल चीजें हैं, लेट मी स्टडी मोर। अब जितना भी आप डीप में जाना चाहे, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं तो भी बाइबल पढ़ो डेटिंग रिलेटेड इश्यूज हैं तो भी बाइबल पढ़ो, वर्क प्लेस में कोई समस्या आ रही है तो भी बाइबल पढ़िए, है कि नहीं। अलग अलग टॉपिक्स हैं। और प्रेयर्स, वर्शिप, अब देखिए ये क्रिश्चियंस के लिए तो डिवोशनल एंगल भी दिया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि केवल जो है डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट उसको भी देने का एक तरीका है। फॉरगिवनेस, फेथ, डाइवोर्स हो रहा है आपका तो भी बाइबल पढ़िए ये देखिए डाइवोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, सर्वाइविंग डाइवोर्स, डाइवोर्स टू हीलिंग, है ना, हाउ टू गेट थ्रू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अब बड़ा आश्चर्य की बात होगा, लोगों को लगेगा कि भाई डाइवोर्स के बारे में दिया है क्या बाइबल में। तो ये आप देख लेते हैं। स्टार्ट रीडिंग प्लान, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग प्लान। अब ये आर्टिकल है, इसमें जीसस के बारे में थोड़ा डाल दिया है ना, मतलब एक स्क्रिप्चरल पर्सपेक्टिव दे दिया डिपेंडिंग ऑन टॉपिक।
और फिर बाइबल का वर्स आ जाएगा, फॉर वी वुड नॉट ब्रेथरन have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves but in God which raiseth the dead. तो बता रहे हैं कि हम जब एशिया में थे तो है ना, ignorant of which came to us in Asia, एशिया में बहुत ट्रबल आया था और ऐसा लग रहा था कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तब हमें याद रखना चाहिए कि गॉड जो है वो रेज करते हैं हम। तो कितना बढ़िया मीनिंग है। कोई डाइवोर्स के थ्रू जा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पढ़ेगा तो उसको एकदम से होप मिलेगा। तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये स्क्रिप्चर्स बस ऐसी फालतू की चीजें हैं, बातें हैं, 5,000 साल पुरानी बातें, मेरे लिए कुछ नहीं है इसमें, है ना। सो अब ये ऐप है और ये ऐप जो है बहुत फेमस ऐप है। यू वर्जन कंपनी है जिसने ये ऐप बनाया है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। The Bible is God's word to us. अब देखो इन्होंने प्रमोट किया इस तरीके से कि आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाइबल पढ़ो। When we read or listen to it, it tells us what's true and helps us live a better life. ये इंडियंस को टारगेट करने के लिए इंडियन कैरेक्टर रखा है, आप देख रहे हैं। The Bible app can give God's word a voice in your life every day. You'll find thousands of free मतलब आप चाहे स्पोर्ट्समैन हो, कहना क्या चाहता है, आप चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप बूढ़े व्यक्ति हो, चाहे आप इंडियन हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, discover है ना, together with friends. दोस्तों के साथ बैठे हुए Share your journey along the way. Get the Bible app today. बाइबल पढ़िए, ठीक है ना। सो दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अगेन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि डू नॉट थिंक देयर इज कि स्पिरिचुअलिटी का कोई डिमांड नहीं है, कोई भगवद गीता पढ़ना नहीं चाहता, घोर कलयुग आ गया है ना, और प्रीचिंग नहीं हो सकता। डू नॉट थिंक लाइक दिस, दीज आर मिसकंसेप्शंस, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेट अस गो अहेड। दिस वाज बाइबल ऐप। नाउ दिस इज इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। थोड़ा फास्ट में जाऊंगा। ये ठीक है ना। अब ये इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। इसमें आप देखो लेवल वाइज दे हैव कोर्सेज, है ना। जैसे लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ, न्यू मुस्लिम सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। न्यू मुस्लिम मतलब कि मैं जस्ट अभी अभी इस्लाम स्वीकार करने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये सब कोर्सेज, न्यू मुस्लिम कोर्स, है ना। फिर ये सब कोर्सेज हैं। लेवल 1 का कोर्स देखते हैं। लेवल 1 में ये सब कोर्सेज है। फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, कंटेम्परेरी इश्यूज। लेट मी शो यू दिस। कंटेम्परेरी इश्यूज हैं। इसमें बताया कि कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं उसके बारे में कुरान का क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेड प्रोग्राम कर दिया। पहले फ्री था एक्चुअली मेरे पास, मैंने बहुत पहले ये देखा था, उस टाइम पे फ्री था, इन्होंने अभी पेड कर दिया है। एनीवे, तो इसमें आप देखो ये टीचर्स हैं, है ना, इसको पढ़ा रहे हैं, सेल्फ पेस्ड है, सर्टिफिकेशन भी है इसका, और फैसिलिटेटर हैं और एक टीचर है। टीचर का मतलब है पढ़ाएगा, फैसिलिटेटर मतलब फॉलो अप करेगा, आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्या डाउट्स हैं, है ना, उसको क्लियर करेंगे। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि कितना सिस्टमेटिकली क्रिश्चियंस, इस्लाम, मुस्लिम्स कर रहे हैं, सो दैट वी कैन टेक इंस्पिरेशन, दैट्स ऑल। और भी देखो ये सारे टॉपिक्स हैं इनके पास। IOU इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्पेशल वर्कशॉप, क्योरिंग मॉडर्न इलनेस, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दे आर ट्रेनिंग पीपल टू इन दीज आर्ट्स, है ना, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। $20 का कोर्स है। फिर हीलिंग द सोल, है ना, मॉडर्न इलनेस मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये दिस इज हाउ दे आर डूइंग। तो अगेन सेम थिंग, आप देखो एजुकेशन का डिमांड है ना, और एजुकेटर्स हैं इनके पास, और कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सिस्टमेटिकली। तो ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं कह रहे कि डायरेक्ट कुरान पढ़ो आप, है ना। इस तरीके से दे आर प्रोमोटिंग फॉर न्यू पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। आप लोग चाहें तो इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। This is another website I wanted to show you, thegoodbook.co.uk. ये भी क्रिश्चियंस का वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है, देखिए,
इस वेबसाइट के अंदर बाइबल स्टडी, बाइबल से रिलेटेड कई सारे बुक्स हैं, है ना। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारे बुक्स हैं जो कि बाइबल से रिलेटेड इन लोगों ने लिखे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कई सारे एजुकेटर्स मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। वेयर इज गॉड इन ऑल द सफरिंग। अब कई लोग इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बुक लिख दिया, उसके ऊपर वीडियो बना दिया, है ना। और ये चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बुक को अगर आप देखना चाहें अंदर क्या है, क्या चैप्टर्स है, तो ये बुक है, देखिए, है ना। सो अगेन पॉइंट इज दैट कि आप देखो ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग, ये देखिए ट्रेनिंग भी है इनके पास, है ना। दे हैव क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स। आउटरीच के लिए ये सारी बुक्स हैं। 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये है, 11 से 14 साल के लोगों के लिए ये है, छोटे बच्चों के लिए ये है। तो इस तरीके से इतना सिस्टमेटिकली दे हैव क्रिएटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट्स, एजुकेशन। कई लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियंस केवल चावल दे के कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। चावल दे के कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ट्राइबल एरियाज और इस तरीके की जगहों पे है, बट इंटेलेक्चुअल्स को भी कन्वर्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से, है ना। तो ये नहीं भूलना चाहिए हमें। सो दिस वाज अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच आई वांटेड यू टू शो। ये ब्रेन पिकिंग्स भी है, आप जाके खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, तो आई विल नॉट गो। YouTube channels I wanted to show you. There are many YouTube channels which are topic based. There are दो तरीके के YouTube channels हैं, topic based और person based. Topic based मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया और उस टॉपिक पे बात करता है। सपोज की सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, ये एजुकेशनल कंटेंट है, बट बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है। नॉर्मल आपका मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है, बस इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है ये लोग। दीज आर कॉज बेस्ड वीडियोस, है ना। तो ये सब चैनल्स हैं, अकेडमी ऑफ आइडियाज, आफ्टर स्कूल, द स्कूल ऑफ लाइफ, कैस्पियन रिपोर्ट, वर्टेसियम। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे अकेडमी ऑफ आइडियाज है। ये चैनल है, देखिए, इस पे 8,65,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। और इनके वीडियोस, इसके वीडियोस देखिए, हर वीडियो पे 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज है। हर वीडियो पे 1 लाख से 1 लाख 2 लाख से ज्यादा व्यूज है, 6 लाख व्यूज भी हैं। और ये एजुकेशनल कंटेंट है। आप टॉपिक देखिए, हाउ द ग्रेटर गुड इज यूज एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल, inferiority complex versus superiority complex, है ना। Psychology of power, the psychology of heroism, psychology of anti-hero, life as a quest। तो आप देख सकते हैं इस पे एंटरटेनमेंट नहीं है, और बहुत ही सीरियस टॉपिक्स हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत लाइफ से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड। इनका आप देखोगे टैगलाइन भी है, फ्री माइंड्स फॉर अ फ्री सोसाइटी, एंड ही हैज लिटरली क्रिएटेड लॉट्स ऑफ वीडियोस। तो आप देखो, इट इज इन डिमांड more than every video, nearly every video has more than 2 lakh subscribers, 2 lakh views, sorry. And I will tell you that now he has also started to earn money from this. मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैट्रियन इसका लिंक है, और ये लोग इसके मेंबर्स बन रहे हैं। आप $1 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, $2, $5 मेंबर्स बन रहे हैं। और आप देखिए इतने पैट्रॉन्स हैं, और पर वीडियो $1,000 ही इज अर्निंग। कैसे? एजुकेशनल कंटेंट से। तो ये भी मत सोचिए कि जो है एजुकेशनल कंटेंट के लिए लोग पैसा दे के लोग एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इतना डिमांड है एजुकेशनल कंटेंट का। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। And now he has also created his website. मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। और धीरे धीरे किया, ये नहीं कि एकदम से इसने ये सारी चीजें की हैं, धीरे धीरे। he started with YouTube channel and now he has created his website. ये देखिए, अब वेबसाइट के ऊपर जो भी वीडियो बनाता है उससे रिलेटेड आर्टिकल भी डाल देता है इसके ऊपर। साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन सब चीजों से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियोस हैं, है ना। और बुक्स भी सजेस्ट करता है कि कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। ये सारे बुक्स हैं फिलोसफी से रिलेटेड और in general life से related. So therefore do not think that कि there is no demand for education, या YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर सर्वाइव नहीं कर सकते। एक और चैनल आपको दिखाता हूँ, आफ्टर स्कूल। इट हैज 1.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इसमें भी आप देखोगे कि जो वीडियोस हैं 1 मिलियन, 3 लाख, 8 लाख, है ना, इस तरीके से 1 मिलियन,
5 लाख इस तरीके से व्यूज है। और आप टॉपिक पढ़ो, ये एजुकेशनल कंटेंट है, लिविंग इन सर्वाइवल वर्सेस लिविंग इन क्रिएशन, मतलब सर्वाइवल के लिए केवल जीना या फिर है ना पर्पस बेस्ड लाइफ जीना। इल्यूजन ऑफ मनी, टाइम एंड ईगो। अब ये टॉपिक आप देखो, ये इन टॉपिक्स के ऊपर भागवतम और भगवद गीता में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। सो आवर एजुकेटर्स कैन आल्सो क्रिएट सच टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड विदाउट थिंकिंग कि भाई डिमांड में है कि नहीं है। देखिए 14 लाख लोगों ने देखा है तो डिमांड में है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग केवल वीडियो सॉन्ग्स थंबनेल जब दिखता है तभी क्लिक करते हैं, इनके ऊपर भी क्लिक्स आ रहे हैं। आप देखो सारे वीडियोस जो हैं, हाउ टू वर्क लेस एंड बी मोर प्रोडक्टिव, द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ, वॉर ऑन ड्रग्स और वॉर ऑन द माइंड, है ना, दीज आर टू फ्यूचर्स, टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज स्पीडिंग अप, the richest man in history, the science behind gold, social media is destroying us. सोशल मीडिया के अगेंस्ट वीडियो बनाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही। तो दिस इज हाउ you can see that this is educational content, but it is in demand. Of course प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मत बोलिए कि एजुकेशन कंटेंट डिमांड में नहीं है। आप बोलो कि हम ये कह सकते हैं कि हमें धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन वैल्यू हाई करना पड़ेगा, कंटेंट क्वालिटी हाई करना पड़ेगा, बट लेट अस नॉट हैव अ मिसकंसेप्शन कि एजुकेशन कंटेंट डिमांड में ही नहीं है, प्रीचिंग का कोई फायदा ही नहीं है, कौन सुनेगा प्रभु जी, ये एटलीस्ट हम ना बोले ये सब चीजें। नाउ सेकंड अनदर चैनल आई वांटेड टू शो यू इज कैस्पियन रिपोर्ट एंड वर्टेसियम। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, आई हैव गिवन यू एन आइडिया। कैस्पियन रिपोर्ट एक चैनल है जिसमें एक व्यक्ति है जो कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वीडियोस बनाता है, और वो सिंपल ऑडियो नरेट करता है और आगे इमेज और वीडियो चलता रहता है। वो भी उसके भी मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो मिलियन से ऊपर व्यूज जाता है, लाख से ऊपर व्यूज जाता है। सो अगेन वर्टेशियम जो है साइंस वीडियोस बनाता है। तो ये सब कुछ कलेक्शन, और भी मेरे पास कलेक्शंस हैं, मे बी कभी मैं शेयर कर सकता हूँ। फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो पर्सन बेस्ड हैं, जो कि ये चैनल्स हैं। जेम्स जानी एक व्यक्ति है, रैशनैलिटी रूल्स, मैं ये दिखाता हूं आपको, रैशनैलिटी रूल्स। ये एक एथिस्ट है, वो चलाता है ये चैनल। अगेन दिस इज एजुकेशन कंटेंट नॉनलेस। इसके, और इसने रिसेंटली शुरू किया, बहुत टाइम नहीं हुआ है, और मेरे सामने मैंने देखा कि इसने शुरू किया और 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए इसके, और एथिज्म के ऊपर वीडियो बनाता है। ये सारे टॉपिक्स आप देखो, एथिज्म इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, क्या ये सही है या गलत है। इनफाइनाइट पनिशमेंट फॉर फाइनाइट क्राइम, कहते हैं ना क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स कहते हैं कि आपने क्राइम कमिट किया, सिन किया, तो आपको हमेशा के लिए हेल में जाना पड़ेगा। तो इसने टॉपिक बनाया इनफाइनाइट पनिशमेंट और फाइनाइट क्राइम, छोटे से क्राइम के लिए इनफाइनाइट पनिशमेंट। तो मतलब दे टारगेट, ही टारगेट्स रिलीजन, स्पेशली अब्राहमिक रिलीजन दे टारगेट। तो इस तरीके से आप देखो, द एरोगेंट ह्यूमिलिटी, सूडो ह्यूमिलिटी, द रॉन्ग गॉड, द निहिलिज्म ऑफ अ जोकर। तो इस तरीके से द कलाम रिप्लाई टू कैप्चरिंग क्रिश्चियनिटी। तो ये देखो, ये सब एजुकेशनल कंटेंट है, बट लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो ये वीडियो, ये एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति चैनल चला रहा है और वैरायटी कंटेंट्स नहीं है। प्रेगर यू में एग्जांपल बताया कि जहां पे कई सारे एजुकेटर्स आगे चैनल चला रहे हैं, है ना। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये पर्सन बेस्ड है, एक व्यक्ति चला रहा है, एंड बट दे आर एजुकेटर्स। इस तरीके से आप इसमें से एंड्रयू कर्बी, जैक ट्रैन, है ना, अली अब्दाल, नथानियल ड्रू, ये सब एजुकेटर्स हैं, एंड दे आर, उनके वीडियोस मिलियन व्यूज जाते हैं। ऑफ कोर्स अगेन जैसा मैंने बताया, उनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है, बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन कंटेंट या एजुकेटर्स डिमांड में नहीं है ऑनलाइन, है ना। दैट दिस मिसकंसेप्शन एटलीस्ट इट कैन बी ब्रोकन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चैनल है एमडी प्रोस्पेक्ट। ये जो है लिटरली 4 घंटे ऑनलाइन वीडियो पढ़ता है ना, और लोगों को इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए। एमडी प्रोस्पेक्ट, ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, और ये साथ में चैनल बना है। अब देखो ये वीडियो है इसका, 4 आवर स्टडी विथ मी। अब इसने कुछ नहीं किया, ये पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, और आप साथ में
मतलब ये इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए। ये देखिए, ये पढ़ रहा है और इसने वीडियो बनाया, यही कंटेंट है इसका। बीच बीच में ब्रेक भी ले रहा है और जो नोट्स बना रहा है वो इधर स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। तो ही आइडिया क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ही इज एन एजुकेटर एंड ही इज इन डिमांड। आप देखो, और ये भी नया है, अभी इसने रिसेंटली कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, बट नाउ ही है 76.7 सब्सक्राइबर्स। आप समझ रहे? ये देखो, और इसके टॉपिक्स देखो, सब एजुकेशन से रिलेटेड है। रीडिंग मल्टीपल बुक्स अ वीक इज चेंजिंग माय लाइफ। अब इसमें जो बुक्स पढ़ रहा है उसके बारे में बता रहा है बैठ के, क्या क्या बुक्स पढ़ा है ना, और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगेन ही इज एन एजुकेटर एंड ही इज इन डिमांड। अब कोई भी टॉपिक इसका देख लो, कोई भी फालतू टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, कोई भी एंटरटेनमेंट टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, है ना। एग्जाम से, मेडिकल स्कूल एग्जाम, विजुअल स्टडी टेक्निक्स पे इसने वीडियो बनाया। देखो 3 लाख 2.5 लाख इसके व्यूज हैं। सो there is demand for educators and educational contents. That is the point. I cannot stress more than this. Similarly, Ali Abdal is also he also makes videos like this. He's also medical student. Then Nathaniel Drew को आपको थोड़ा दिखाता हूँ, उसका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होता है। Nathaniel Drew 1.16 million subscribers, single person. There's a very different kind of pandemic sweeping the अब ये वीडियो है, जैसे सपोज कीजिए, इफ यू आर फीलिंग लोनली, है ना, वॉच दिस वीडियो। पैंडेमिक के टाइम पे लोग जो है अकेले रहने लग गए थे, है ना, और उससे प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसके ऊपर इसने डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाया पूरा 20 मिनट का। और इसके और भी आप वीडियोस देखोगे, टॉपिक्स देखोगे, तो ही टॉक्स अबाउट द रीजन यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, हाउ टू रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, 3 simple ideas that are changing my life, है ना, the key to more interesting life, why you are feeling discouraged। ये थोड़ा मोटिवेशनल टाइप कंटेंट है, बट नॉनलेस इट इज एजुकेशनल। सो देयरफॉर आई वांटेड टू शो। तो आप लोग इनको आप खुद से भी देख सकते हैं। तो ये टॉपिक बेस्ड चैनल्स हैं और ये पर्सन बेस्ड चैनल्स हैं। तो इतने इस तरीके के चैनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और आपको मैंने दिखाया कि दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। So therefore conclusion is that first of all, as an educator, we have to refine our taste. Taste means what type of contents we are consuming, what type of websites we are visiting, what type of videos we are watching, है ना. And you can train your machine, we can say your Facebook profile, your Twitter profile. YouTube is much easier to train actually. अब इसके ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बना सकता हूँ, सेपरेट वीडियो, हाउ टू डू दैट। सो बट पॉइंट इज दैट कि वी एज एन एजुकेटर वी शुड नॉट थिंक कि देयर इज नो डिमांड फॉर एजुकेशनल कंटेंट्स, है ना। ये मिसकंसेप्शंस हमने डिस्कस किए थे शुरुआत में। कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना एजुकेशन कंटेंट सुनने में। आजकल सब टिकटॉक पे ही लगे हुए हैं। तो मैंने आपको दिखाया सब टिकटॉक पे नहीं लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट पैसा दे के भी लेना चाह रहे हैं। और ये एजुकेशन एकेडमी मैंने नहीं दिखाया, नहीं कि साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो पैसा दे के पढ़ ही रहे हैं लोग, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जो मैंने आपको वेबसाइट्स जैसे प्रेगर यू दिखाया या यूट्यूब चैनल्स दिखाए, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल पीपल आर वॉचिंग इट एंड पीपल आर पेइंग ऑल्सो। तो ये नहीं सोचिए कि आजकल सब टिकटॉक पे लगे हुए हैं। सब टिकटॉक पे नहीं लगे हुए हैं। हो सकता है कि हम जिनको देख रहे हैं वही टिकटॉक पे लगे हुए हैं केवल। तो हमें उस बक्से से बाहर निकलना पड़ेगा। वी शुड नो वर्ल्ड, ये संसार बहुत बड़ा है और देयर इज लॉट टू एक्सपीरियंस। सो वी शुड कम आउट ऑफ आवर बॉक्स एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम एन एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव। And when you will see like this, you will find that there is demand for educational content, and it will give you inspiration and enthusiasm to create preaching contents, educational contents. Education कोई लेना ही नहीं चाहता है ना, कोई सुधरना ही नहीं चाहता। देखो लोग सुधरना चाह रहे हैं, तभी तो ये वीडियोस देख रहे हैं, है कि नहीं। अब ये अलग बात है कि लोग उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, है ना, वीडियोस पे व्यूज लेके जा रहे हैं। बट डिवोटीज तो क्लेम करते हैं ना कि भाई हमारे पास प्रोसेस है सुधारने का। तो अगर क्लेम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम
एक प्लेटफॉर्म बनाएं या कंटेंट्स ऐसे क्रिएट करें जिसके थ्रू लोग आए और धीरे धीरे कोर्सेज करें, है ना, प्रैक्टिसेस करें, प्रोसेस फॉलो करें एंड दे चेंज देयर लाइफ। ये ना सोचें कि घोर कलयुग है, अटेंशन स्पैन कम है, आयु कम है, बीमारी बढ़ रही है, जॉब नहीं है। क्या सुनेंगे प्रभु जी लोग? जॉब नहीं है, बट कई ऐसे, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब है ना। तो ऑफ कोर्स हर प्रॉब्लम एजुकेशन से नहीं सॉल्व होगा, अलग अलग, इसलिए प्रीचिंग में भी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ बनाया, उसका डिफरेंट पर्पस है, अल्टीमेटली प्रीचिंग पर्पस है, बट इट सॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व थ्रू एजुकेशन, है ना। और उसका डिमांड है, और ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम है और एजुकेशन कंटेंट सुनना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। सो वी आवरसेल्फ आल्सो गेट कैरिड अवे। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि वी नीड एज ए एजुकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिफाइन आवर टेस्ट ऑफ व्हाट वी कंज्यूम, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप देखोगे इस तरीके के कंटेंट, तो आप देखोगे कि कई लोग देख रहे हैं, तो आपको इंस्पिरेशन आएगा कि हाँ, हम भी बनाएंगे तो लोग देखेंगे। बस वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रोडक्शन वैल्यू, दैट्स ऑल। तो वो तो ग्रेजुअल एफर्ट है, ग्रेजुअली इट विल हैपन। सो आई होप कि दिस सेशन would be beneficial for you as a preacher in general also and in SSC also, क्योंकि कोर्स 2 से हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को करना शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे ये सब मिसकंसेप्शंस ना आए और आप तेजी से आगे बढ़ सकें। इसीलिए जो है वी आर डिस्कसिंग सो मच थ्योरी बिफोर हैंड, स्पेशली इन कोर्स 1। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तो आप लोग ये सेशन कीजिए इसको पूरा, और ऐप के ऊपर आप इसको टॉगल बटन दबा दीजिएगा, नीचे टॉगल बटन है कि यू हैव वॉच दिस वीडियो, एंड इसका क्विज भी है, उसका क्विज को भरिए आप लोग। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो लेसन 1 लेसन 2 जरूर देखें, तो क्योंकि ये बिल्डअप कॉन्सेप्ट्स में बिल्डअप कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।